everyone. I welcome you all on the behalf of Women Welfare Committee today as we reach the end of the Women's Safety Week. During our week-long event, we have seen and learned how the role of a man is pivotal for women's safety through Mr. Harish Sadani's talk, co-founder and executive director of Men Against Violence and Abuse MAVA organization. The laws related to various online and offline women-related crimes were presented through a Nukkad Natak by the Mayor and Hunkar Group. These were very important aspects related to women's safety that also highlighted our dependency on either another human being or the judiciary. It is the need of the times that we make ourselves stronger and more independent to face any such possible unpleasant events. We have many historical women personalities who defended our nation with their lives. Can't we women defend ourselves if the need to learn techniques to defend ourselves and prevent women-related crimes? Therefore, today we have Mr. Ajay Meher amongst us, who will be teaching us some safety techniques every woman should know. Mr. Ajay Meher is currently the Taekwondo and Karate coach at Aizer Bhopal. He is currently pursuing a master's degree in physical education from Barkatullah University, Bhopal. He is also a professional karate coach and has judged and refereed various national and level competitions. He also holds second degree black belt in karate, first degree black belt in taekwondo and kickboxing. He has been the front runner in several national and international championships and has won gold, silver, bronze medals in various World Traditional Shotokan Karate Championships, gold medal in 4th North India Taekwondo Championship, and bronze medal in 2nd National Kung Fu and Kickboxing Championship. He also won the bronze medal in 6th NSK International Karate Championship held in Kathmandu, Nepal. He has trained many students in various schools, tests, NCC training camps, and has given self-defense training to many boys and girls in these camps. So let us learn about some important safety techniques from our Taekwondo coach, Mr. Ajay Meher, in today's session. Mr. Ajay Meher, now it's over to you. Sir, please unmute yourself. We have started delivering. See, but there is no audio. We have switched to talk. Ajay ji, can you hear me? You have to unmute yourself. Mic. Your mic is... Okay, ma'am. Okay. Good evening, ma'am. Good evening to all of you. आज हम बात कर रहे हैं वुमेन सेफ्टी वीक पे कि वुमेन सेफ्टी वीक पे सबसे पहले अपन बात करते हैं सेल्फ डिफेंस पे कि अपने वुमेन्स को सेल्फ डिफेंस की जरूरत क्यों है, सेल्फ डिफेंस क्या है और क्यों इसकी आवश्यकता है, इस बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल्फ डिफेंस क्या है। तो सेल्फ डिफेंस सबसे पहले अपन जान लें कि सेल्फ डिफेंस अपने आप को बचाने का एक तरीका है, एक अवेयरनेस है। इसी को सेल्फ डिफेंस बोला जाता है कि अपने आप को अपन कैसे बचा सकते हैं। किसी भी कंडीशन में अपने आप को बचाना ही सेल्फ डिफेंस है, चाहे वो किसी भी तरीके से बचाएं अपने आप को। तो सबसे इसके बाद दूसरा एक क्वेश्चन खड़ा होता है कि इसकी जरूरत क्यों है, सेल्फ डिफेंस की जरूरत क्यों पड़ी है, क्यों इसके बारे में आजकल अवेयरनेस फैलाई जा रही है, क्यों इसकी आवश्यकता है, इसके बारे में अपन थोड़ा सा डिस्कस करेंगे।
तो सब अब मैं बता देना चाहता हूँ कि आजकल जितने भी आप लोग पेपरों में, न्यूज़ में सुनते आ रहे हैं कि महिलाओं के साथ बहुत सारी छेड़खानी, दुर्व्यवहार और बहुत सारी डिफिकल्ट महिलाओं को आती है। तो इस सिचुएशन से निकलने के लिए महिलाओं को अपने आप को खुद आगे आना पड़ेगा। अपन किसी के भरोसे नहीं बैठ सकते कि कोई हमें प्रोटेक्शन दे, कोई हमें बचाव करे। तो अपन को खुद आगे आना पड़ेगा। समय समय पर गवर्नमेंट्स के द्वारा भी बहुत सारी नीतियां बनाई जाती है वुमेन सेफ्टी वीक्स के ऊपर, महिलाओं को सुरक्षाओं को लेकर, लेकिन इन सब के बावजूद भी महिलाएं जो है असुरक्षित महसूस करती हैं, फिर भी केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो यही सारे कारण इतने हो रहे हैं। तो इन्हीं सब कारणों से अपने आप को बचाने के लिए आज वुमेन सेफ्टी वीक पे सेल्फ डिफेंस को लेके अपन बात कर रहे हैं कि महिलाएं जो है अपने आप को कैसे बचा सकती हैं, महिलाएं खुद आगे आके अपने आप को कैसे बचा सकती है, क्योंकि अपन किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहते हैं। आज की अपने जो लाइफस्टाइल है वो इतनी व्यस्त है कि अपन टाइम नहीं दे पाते अपने बच्चों के लिए भी कि अपन उसके साथ हर पल अपन खड़े रहें। तो बच्चों के हिसाब से अगर अपन सोचे कि बच्चे भी कहीं स्कूल जाते समय या फिर अब जो स्टूडेंट्स हैं कभी ऑफिस जा रहे हैं या कॉलेजेस जा रहे हैं, तो कभी आते समय लेट भी हो जाता है, नाइट हो जाती है, तो अपन अपने आप को सेफ कैसे कर सकते हैं उस बारे में बहुत सारी चीजें मैं बताऊंगा आगे। तो आज अपन सबसे पहले अपन बात करते हैं वुमेन सेफ्टी पे कुछ सेफ्टी रूल्स के ऊपर कि कुछ सेफ्टी टिप्स क्या हैं जिसको अपन फॉलो अगर करें तो अपने आप को बिना किसी मार्शल आर्ट को सीखे, बिना किसी टेक्निक्स को लगाए अपने आप को बचा सकते हैं। कुछ सेफ्टी टिप्स हैं जिनका अपन यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर अपन लेट नाइट कभी ऑटो या रिक्शा से अपन को आना पड़ रहा है, अगर अपन ऑटो रिक्शा से आ रहे हैं तो उस समय अपन कौन कौन सी चीजों को ध्यान रख सकते हैं जिससे कि हमें आने वाले जो खतरा उससे अपन थोड़ा सा बच सकें या उसको टाला जा सके। जैसे कि अगर आप टैक्सी या ऑटो से आते हैं तो आप उसका जो नंबर प्लेट है आप उसका फोटो ले लीजिए, उसको आप अपने घर वालों के साथ शेयर कीजिए या अपने मित्र जो खास जो आप लोगों को हर समय या कभी भी आपको नियरेस्ट जो आपके फ्रेंड्स उसके साथ आप शेयर कर सकते हैं, ताकि कभी सिचुएशन अगर आपके विपरीत होती है तो वो आपको प्रोटेक्शन के लिए आ सकते हैं। इसलिए आप अपनी नंबर जो प्लेट होती है जो भी आप टैक्सी में या ऑटो में बैठते हैं तो उस पर आप शेयर कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, आप अपने मोबाइल को हमेशा चार्ज रखें, उसमें बैलेंस भी होना चाहिए। और मोबाइल में हमेशा जो अपने मेन नंबर्स हैं जैसे 100 डायल हो गया या इमरजेंसी जो कॉलिंग नंबर है उनको हमेशा आप डायलिंग में रखें ताकि आप तुरंत उसको कॉल कर सकते हैं सिचुएशन जब अपने विपरीत होती है। और अपन क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप लिफ्ट में कभी आपको लिफ्ट से जाना पड़ रहा है लेट नाइट, और सपोज कीजिए लिफ्ट में अगर कोई आपके साथ अजनबी है और जो आपको लग रहा है कि इससे आपको खतरा महसूस हो सकता है, तो आप क्या कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले करना ये है कि लिफ्ट में आप मान लीजिए आप फर्स्ट फ्लोर से आपको 10 या 12th फ्लोर पे जाना है और इस बीच में आपके साथ कोई स्ट्रेंजर है तो उससे आप बचाव के लिए आप क्या करेंगे, जो लिफ्ट की सारे फ्लोर्स हैं जैसे 2 से लेके 10 तक की सारी बटनों को आप एक साथ दबा दीजिए ताकि लिफ्ट जो होगी हर एक फ्लोर पर रुकती हुई जाएगी। तो इससे क्या होगा, जो स्ट्रेंजर है उसके मन में भी अगर कोई चीज गलत आने वाली होगी तो वो हर एक फ्लोर पर लिफ्ट रुकती हुई जाएगी, लोग आते जाते रहेंगे या उसको लगेगा क्या कोई भी अंदर आ सकता है, तो कोई भी मतलब अनप्रोटेक्टेबल कोई भी सिचुएशन है तो वो क्रिएट नहीं होगी, वो उससे आप बच सकते हैं। या फिर आप भी किसी भी फ्लोर पे निकल के बाहर जा सकते हैं अगर आपको लगता है कि खतरा हो रहा है अंदर। ठीक है, अब बात अपन आगे करते हैं कि अगर कोई आपका पीछा कर रहा है, आप मान लीजिए आप अपने घर की तरफ जा रहे हैं, सुनसान रास्ता है, कोई आपका पीछा कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना ये है कि आप अपने दिमाग को शांत रखिए और सोचिए कि आप अपने सेफ कहाँ पे आप रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप शॉप से, किसी का घर हो गया या फिर एटीएम हो गए, एटीएम, इन सब जगहों पे आप जा सकते हैं उस समय जो आपके नियरेस्ट हो, तो आप वहां पे जाके अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कोई एटीएम पे एटीएम गार्ड होते हैं तो वो आपको अपनी सिचुएशन उनको बताएंगे तो आपकी हेल्प कर सकते हैं। और अगर गार्ड भी अगर नहीं है तो किसी ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे कैमरेस लगे हों, कैमरा वगैरह लगे हों, तो जो आपको हानि पहुंचाने वाला होगा वो उस कैमरे की नज़र में नहीं आएगा क्योंकि अपने आप को बचाना चाहेगा तो वहां से निकल जाएगा। तो एक तरीका हो गया अपने आप को बचाने का। अब नेक्स्ट जो सिचुएशन है कि आप किसी ऑटो या टैक्सी से आप जा रहे हैं और मान लीजिए कि जो ऑटो जो ड्राइवर है वो आप अचानक रास्ते को बदल के दूसरे रास्ते पे जा रहा है,
तो अपन उस सिचुएशन में क्या करें? तो अपन पहले तो अपन को उसको चिल्लाते हुए रोकना है कि नहीं आप, हम बस सीधे, हमें शॉर्टकट नहीं जाना, हमें अपने रास्ते से सीधे जाना है। अगर वो फिर भी नहीं मानता है तो अपने पास क्या क्या अपन कर सकते हैं? पहली चीज, अगर आपके पास कोई दुपट्टा है जिससे अपन फेस कवर करते हैं, कोई भी आपके पास दुपट्टा है या बैग अपने पास है जिसका जो हैंड ग्रिप होता है उसका जिसका हो बड़ा सा, तो आप उसका यूज करके आप उसके आगे से नेक को पीछे की तरफ खींच सकते हैं। ठीक है, तो उसको दुपट्टे का भी अपन यूज करेंगे, तो दुपट्टे से उसकी गर्दन को पकड़ के पीछे की तरफ खींचेंगे तो सामने वाला अनकंफर्टेबल महसूस करेगा, तुरंत वो ब्रेक लगाएगा। तो उस सिचुएशन में क्या करना है? आपको तुरंत ऑटो से निकलना है और वहां से भाग जाना है, और भाग के सेफ जगह पे अपन को जाना है। सेफ जगह जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी शॉप्स हो सकती है, किसी का घर हो सकता है, या एटीएम हो सकते हैं, तो आप वहां पे जा सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट अपनी सिचुएशन है, आप घर में हैं, आप अकेले हैं, लेट नाइट, या तो चोर हो सकता है, कोई भी स्ट्रेंजर्स हो सकते हैं, या कोई सेल्समैन हो सकता है जो आपको घर में घुस के आपको हानि पहुंचाना चाह रहा है। तो आप उस समय क्या करें? तो सबसे पहले आप ऐसी जगह पे जाइए, आपके घर में सबसे सेफ जगह होती है आपका किचन, तो आप किचन की तरफ जाइए, क्योंकि आपको पता है कि किचन में जो चीजें हैं, चाकू हो गया, मिर्च पाउडर हो गया, प्लेटें, जो भी मतलब वेपन्स जैसे नाइफ वगैरह हो गए, सब आपको पता है कि कहाँ पे कौन सी चीजें रखी हुई हैं। तो उन सब चीजों का यूज आप कर सकते हैं सेल्फ डिफेंस के लिए। और सबसे मेन हथियार होता है वुमेन्स का, वो है शोर मचाना। जैसे सबसे ज्यादा मेन होता है चिल्लाना। अगर वुमेन्स अगर कभी अपने आप को सिचुएशन ऐसा मानती है कि कभी फंस जाती है किसी कंडीशन में, तो मेन जो है आप चिल्लाइए, जोर जोर से चिल्लाइए, हेल्प मी करके आप चिल्लाइए। तो इससे क्या होगा? दूर लोगों तक आपकी आवाज जाएगी, आपको कोई प्रोटेक्शन आपको मिल सकता है। और जो अपराधी होते हैं, जो भी आपको नुकसान पहुंचाने वाला है, तो उनका सबसे बड़ा जो खतरा होता है वो यही होता है, शोर। वो घबराते हैं इस चीज से, तो तुरंत वहां से भाग जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो सिचुएशन है, नेक्स्ट सिचुएशन के लिए अपन बात करते हैं कि भाई अगर अपन बाय चांस किसी सिचुएशन में फंस जाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, अपन बचने के बाद भी अपन सेफ्टी मान रहे हैं, लेकिन फिर भी अपन फंस जाते हैं, तो अपन वहां से कैसे निकलें, वो मैं भी आगे आपको बताने वाला हूँ। और इन सब चीजों के लिए आप पहले आपको मैं बता दूं कि जो भी अपन चीजें करने वाले हैं, उसके लिए आपका फिजिकल थोड़ा सा आपको स्ट्रॉन्ग रखना है। स्ट्रॉन्ग मतलब डेली आप थोड़ा सा वर्कआउट आप डेली करिए, स्फूर्ति रहेगी, ताकि और आप कोई भी चीज को अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो अब अपन, मैंने कुछ आपको सेफ्टी चीजें बताई, बहुत कम है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अपन आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अपन को सेफ्टी टेक्निक सीखनी है। तो ये मैं शॉर्ट में आपको थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया कि आप कैसे कैसे आप बच सकते हैं अपने आप को। अब अपन बात करते हैं सेफ्टी टेक्निक्स के ऊपर, तो अपन अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। मैंने बहुत जगहों पर ट्रेनिंग दी है, तो मैंने कुछ नई एक चीजें बनाई है जिसका यूज अपन कर सकते हैं। जैसे 8 स्टेप्स हैं जिसका यूज अपन पूरे सेल्फ डिफेंस में कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए 8 स्टेप्स में आप सभी अपने जगह पे बैठे बैठे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर उन 8 स्टेप्स के बारे में मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा कि कब कैसे आपको यूज करना है। तो उन 8 स्टेप्स को मैं करके दिखाऊंगा। आप लोग चाहे तो आप जहाँ बैठे हैं, आप बैठे बैठे भी उनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत ईजी है। और मैंने कोशिश करी है कि जो भी मैं आपको सिखाऊंगा उन सारी चीजों में मार्शल आर्ट कम से कम यूज हो। उसका रीजन ये है, आज मैं आपको कोई भी मार्शल आर्ट की एक टेक्निक आपको सिखाता हूँ या करके दिखाता हूँ, तो आप थोड़े देर तक आपके दिमाग में वो चीज रहेगी, लेकिन समय के साथ वो चीज गायब हो जाएगी। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि सबसे इजी तरीके, इजी वे में आपको बताऊं कि आपको अपने आप को बचाना कैसे। तो सबसे पहले मैं 8 जो स्टेप्स हैं उसको अपन प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करना मतलब एक बार मैं करके दिखाऊंगा, आप मुझे फॉलो करिए, आपको भी समझ में आ जाएगा मैं क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए सबसे पहले अपन खड़े हो गए। जब भी कोई अपन के ऊपर अटैक होने वाला होता है, अपन कभी भी स्टैंडिंग पोजीशन मतलब इक्वल पेयर करके कभी खड़े नहीं होते हैं। अगर तेज हवा भी चल रही है तो अपना नॉर्मल है, ह्यूमन अपने आप बता देता है साइकोलॉजी का आपको खड़े कैसे होना है अपने आप को बचाने के लिए। तो अब देखो, जैसे मैं खड़ा हूँ, एक पैर मेरा पीछे, एक पैर मेरा आगे, हमेशा अपन ये डिफेंसिव पोजीशन है। कोई अगर अपन को धक्का भी दे तो अपन पीछे इजीली ना जाए, ये अपना डिफेंसिव पोजीशन है। तो ये अपन खड़े हो गए नॉर्मली। तो जो 8 स्टेप है, फर्स्ट स्टेप क्या है, अपन को हैंड्स को इस तरह से ऊपर उठाना है। ये दिखाई दे रहा है, ये ऊपर उठाया अपन ने फर्स्ट हैंड, फिर ये सेकंड। ठीक है, तो फिर से अपन करते हैं ये 1, ये 2, देन नीचे लेके जाना है, फिर ऊपर ले आना है 3, देन 4 नीचे की तरफ,
देन ऊपर ये टाइगर क्लॉक, मतलब टाइगर का पंजे की तरह अपना हैंड्स को बनाना है और ये नीचे की तरफ लेके जाना है ये। फिर दोनों हैंड्स को वाइपर की तरह यूज करते हुए साइड में लेके जाएंगे, ये 1 एंड 2, ठीक है। देन दोनों हैंड्स सामने की तरफ फेस पे अटैक करना है, ठीक है। फिर से अपन इसको रिपीट करेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एंड 8, ये 8 स्टेप्स हैं, 8 स्टेप्स है जिनका अपन आगे यूज करेंगे कि इनका कैसे यूज करना है। तो सबसे पहले एक चीज और आपको बता दूं कि जो भी सेल्फ डिफेंस टेक्निक होती है, सेल्फ डिफेंस 3 वर्ड पे चलती हैं, जैसे P मतलब प्रोटेक्शन, H हिट और R रन, मतलब PHR के ऊपर पूरा सेल्फ डिफेंस चलता है। जैसे P मतलब प्रोटेक्ट, पहले अपने आप को बचाओ, देन हिट, देन रन, मतलब बचाओ अपने आप को, हिट करो, देन भाग जाओ, ठीक है। क्योंकि अपन हिट करेंगे तो सामने वाला 5 या 10 सेकंड के लिए अपने आप में बिजी रहेगा, तो अपन उस समय क्या सिचुएशन से निकल सकते हैं। तो अपने पास केवल 5 या 10 सेकंड ही होते हैं जिसमें अपन अपने आप को बचा के कहीं सेफ जगह पे जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अपन टेक्निक्स के ऊपर जाते हैं। तो फर्स्ट टेक्निक, अगर कोई आपके ऊपर स्लैप करता है तो आप क्या करेंगे। मान लीजिए कोई आपको रन करते हुए आ रहा है, थोड़ा आ गया हूं, और स्लैप करने की कोशिश करता है, तो जो मैंने फर्स्ट स्टेप बताया उसका अपन यूज करेंगे। स्लैप करिए, ये दूसरे एंड से करिए, ये। अब आप देखिए जो स्लैप करता है, कोई भी अगर स्लैप करता है तो ये इसका मसल्स एरिया है, और जब अपन इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने आप को बचा रहे हैं, तो अपनी जो बोन, ये जो बोन एरिया है, इससे अपन अटैक कर रहे हैं। तो जब मसल्स पे बोन अटैक होती है, हिट करते हैं, तो प्रेशर पे दर्द ज्यादा होगा सामने वाले को। आप एक बार ट्राई करके देखेंगे, धीरे धीरे तो आपको भी लगेगा कि दर्द होगा, ठीक है। फिर से स्पीड में अगर कोई अटैक कर रहा है, ये फिर से अटैक, ये अटैक, दूसरे एंड से ये अटैक, ठीक है। ये अपन ने स्लैप अगर कोई कर रहा है तो अपन ने बचने की कोशिश किया, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड, अगर मान लीजिए कोई दौड़ लगा के आ रहा है, क्योंकि अधिकतर जो केसेस होते हैं, चाहे महिलाओं के साथ छेड़खानी का केस हो, बलात्कार का केस हो, या कोई भी केस हो, अधिकतर महिलाओं को बस 3 चीजों के तरीकों से अटैक किया जाता है। या तो बाल पकड़ के नोचा जाता है, या स्लैप किया जाता है, या कमर से पकड़ा जाता है। तो इन सब चीजों पे अपन अभी टेक्निक को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए कोई आ रहा है आपको बाल पकड़ने के लिए, आप पहली चीज तो ये कि कोई अगर पकड़ने के लिए आपको आ रहा है तो आपको पकड़ने देना ही नहीं है, आप अलर्ट रहिए। आप अगर अलर्ट रहेंगे तो आपको कोई पकड़ भी नहीं सकता। वो आपको पकड़ तब सकता है जब आप अलर्ट नहीं है, आप बहुत मतलब आपका ध्यान कहीं और है, तब वो आपको पकड़ सकता है, ठीक है। तो मान लीजिए कोई आपको पकड़ने के लिए आ रहा है, हैंड ग्रिप करने के लिए, ये फिर से स्पीड में आइए जरा, हाँ, ये मैं जो बताया, दोनों हाथ वो सामने इस तरह से लेके जा रहा है, इस तरह से। तो अपन को क्या करना है, हाथों को सामने से ले जाना है और ओपन करना है, अपने बोन्स का यूज करते हुए ये ओपन करना है, ठीक है। चलिए अगेन स्पीड में, ये अपन ने रोका, ठीक है। ये अपन पकड़ने नहीं दे रहे, अपने आप को बचा रहे हैं। अब हिट करना अलग चीज है, हिट तो मैं कभी भी कर सकता हूँ, आप दोबारा अटैक करिए, ये देखो ये मैंने बचाया, देन ग्रोइन पे अपन सेम टाइम अटैक कर सकते हैं, ठीक है। फिर से अगेन ये ब्लॉक, देन अटैक, बहुत इजी है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई आपको कमर से पकड़ने के लिए आ रहा है, दौड़ लगा के कमर से पकड़ने के लिए आ रहा है, तो अपन क्या करें। तो मैंने अभी देखो स्टेप्स पहला ये बताया था, फिर ये हो गया, अब अपन कर रहे हैं नीचे वाला स्टेप, ठीक है। चलिए कमर से को पकड़ने के लिए आइए, ये नीचे भी सेम अपन को वही यूज करना है जो अपन ने ऊपर किया, हैंड्स को ओपन करना है। अगेन रिपीट, ये सेम मसल्स के ऊपर अपनी बोन से अटैक करना है। अगर तेज और झटके से मारा जाएगा तो उसके हैंड्स में दर्द होगा, तो 1-2 सेकंड के लिए अपने हैंड्स को झटका रहेगा, लेकिन अपन को वेट नहीं करना। मैंने क्या बताया था, प्रोटेक्ट, हिट एंड रन। जब तक सामने वाला अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा या अपने आप को संभलेगा, अपन दोबारा अटैक करके वहां से भाग जाओ। तो अब अटैक करिए दोबारा, ये अपन ने अटैक किया। अब देखो यहाँ से अपने पास नियरेस्ट जो उसके वीक पॉइंट से अपन वहां अपन अटैक कर सकते हैं। पहला ग्रोइन अटैक, दूसरा उसी हैंड से अपने नोज पे अटैक करना है। अपना ये पाम एरिया जो दिख रहा है, पाम एरिया से अपन को नोज पे अटैक करना है पीछे की तरफ, क्योंकि ये सेंसिटिव पार्ट है। अगर जोर से हिट किया जाए तो सामने वाला थोड़ी देर के लिए अपने आप में बिजी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टेप के लिए अपन जाते हैं। एक तो ये हो गया, इसके बाद अपन जाएंगे ये जो पंजा है, ये फेस पे अटैक के लिए आप इसको कभी भी यूज कर सकते हैं।
जैसे सामने वाला पास में आया, दोबारा आप अटैक करो, ये अपन ने अपने आप को बचाया, और दूसरे हैंड से ये अपन ने अटैक करते हुए उसको खींच दी। अपने वैसे ही अधिकतर जो है नेल्स जो है या बड़े भी होते हैं, अगर नहीं भी हैं तो अगर आप टाइट रखते हुए अटैक करोगे तो डेफिनेटली उसको चोट पहुंचेगी। ठीक है, अब अपन आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। मान लीजिए कोई आपको गला पकड़ने के लिए आ रहा है, दौड़ लगा के आपको आ रहा है गला पकड़ने के लिए, तो अपन क्या कर सकते हैं? सबसे इजी तरीका, आ जाओ, ये क्या कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखिए, अटैक, ये मैं सामने वाले का जो पावर है, जो स्पीड है, एक जो डायरेक्शन से वो आ रहा है, तो मैं उसके डायरेक्शन को चेंज कर रहा हूँ, शिफ्ट कर रहा हूँ। और मैं इसमें कोई मार्शल आर्ट नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग का यूज करना है, बहुत ईजी है। चलिए अगेन, ये अब यहाँ से मैं अटैक भी कर सकता हूँ। फिर से ये अपन ने ब्लॉक किया, अब यहीं से दूसरे हैंड से इसके नोज के ऊपर ये मैं अटैक कर सकता हूँ। तो सामने वाला थोड़ी देर के लिए अपने आप में बिजी हो जाएगा। जब नोज के ऊपर जब अटैक होता है तो बहुत दर्द होता है। ठीक है, ये एक तरीका हो गया, किसी ने पकड़ा, अपन ने वाइपर का यूज करते हुए अपने आप को प्रोटेक्ट किया, लेकिन साथ में बॉडी को भी यूज करना है। फिर से एक बार देखो स्लो मोशन में, ये आए, फिर से एक मिनट वापस जाओ, फिर से रिपीट, ये मैंने हल्की सी बॉडी साइड लेके गया, लाइन ऑफ अटैक से हल्का सा साइड हो गया, हैंड से अपन ने उसको पुश कर दिया। ठीक है, ये एक तरीका हो गया। अब मान लीजिए सामने वाला जो स्ट्रेंजर है उसने हेलमेट पहना हुआ, अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए उसने हेलमेट पहना हुआ, और वो अपन को पकड़ने आ रहा है या अपने को नुकसान पहुंचाने आ रहा है, तो अपन क्या कर सकते हैं? हेलमेट पहना है तो बहुत ईजी है उसके ऊपर अटैक करना। हेलमेट अपने सिर को बचाता जरूर है एक्सीडेंट में, बट अगर उसके ऊपर अटैक किया जाए हाथों से, कांच के ऊपर या जो अपना जो चिन एरिया होता है उस जगह पे, तो उसी हेलमेट से उसको अंदर बहुत दर्द होता है, चोट लगती है अंदर। कभी आप ट्राई करके देखिएगा, चोट लगती है। एक बार मैं दिखाता हूँ यहाँ, जैसे कोई सामने से आया, ये अपन ने हेलमेट के ऊपर दोनों हाथ से अटैक कर दिया। ठीक है, पास में आने से पहले अपन ने अटैक कर दिया। देखो नॉर्मल क्या होता है, कोई भी गर्ल्स होती है या कोई भी इंसान है जिसको मार्शल आर्ट नहीं आता, तो नॉर्मली अपन क्या करते हैं? अपने आप को बचाने के लिए हैंड्स तो ऊपर उठाते ही हैं, बचने के लिए अपन अपने आप को बचाने के लिए हैंड्स ऊपर उठाते हैं। तो इसी का अपन कैसे यूज कर सकते हैं? मान लीजिए कोई गला पकड़ने आ रहा है, फिर सजा पकड़ने के लिए, ये अपन ने अपने आप को बचाया। अब देखो पकड़ो, हाथ रखो, ये अपने आप को रोका, अपन ने रोकने की कोशिश किया। सेम टाइम क्या करेंगे, किसी भी एक उंगली को पकड़ लेना है, किसी भी एक उंगली को पकड़ लो, और ये सामने वाला खुद अनकंफर्टेबल हो जाएगा। ये दिख रहा है, ये उंगली को पकड़ लिया, बस कुछ नहीं कर सकता। फिर वो अपन फिर जो चाहे जो कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं फिर अब। ठीक है, चाहे किसी भी सिचुएशन में हो, सबसे मेन तरीका है आप उसकी किसी भी एक वीक पॉइंट को पकड़ लो। सबसे उंगली जो होती है, हाथ खोल के ही सामने वाला अटैक करने आता है, तो क्या करेंगे अपन? उंगली, किसी भी एक उंगली को पकड़ा और ये मोड़ दिया। ठीक है, अब अपन जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। ये अपन ने 8 स्टेप्स बताए, इसको मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। ये 1, ये 2 एंड 3, 4, 5, 6 एंड 7, देन 8। ये 8 स्टेप्स में मैंने आप लोगों को बहुत इजी तरीके से अपने आप को बचाना सिखाया। अब और आप देखिए टेक्निक्स अपन और क्या क्या कर सकते हैं। मान लीजिए ये तो अपन ने बचाना सीख लिया कि कोई अपन को पकड़ ही नहीं पाया, अगर पकड़ लिया तब क्या करेंगे? पहली बात तो अपन पकड़ने ही नहीं देंगे। अगर अपन एक्टिव है, मान लीजिए मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, कोई भी एक लड़की खड़ी हुई है इस तरह से या किसी भी एंगल से खड़ी हुई है, ठीक है, अगर कोई मेरा हाथ पकड़ने के लिए आता है तो मैं क्या करूँ? बहुत ईजी है, पकड़ो हाथ। देखो मैंने क्या किया, पकड़ो हाथ, पकड़ो हाथ, फिर से अच्छे से पकड़ो, पकड़ने की कोशिश करो, रियली में जैसे पकड़ते हैं। हाँ पकड़ो, ये थोड़ा सा आपने समझ में आ रहा होगा कि हैंड्स मेरा रखा है वो पकड़ने को, उसका फोकस मेरे हैंड्स पे ऊपर है। अगर मैं अलर्ट हूँ, मुझे पता है कि वो पकड़ने के लिए आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा? अपने आप को बचाने की कोशिश करूंगा, चाहे मैं हाथ उठाऊं या पीछे जाऊं, जैसे चाहूं वैसे मैं अपने आप को बचाने की कोशिश करूंगा। तो पहली चीज तो यही है कि कोई अगर अपन अलर्ट है तो कोई अपन को पकड़ ही नहीं सकता। ठीक है, और अपन क्या कर सकते हैं? देखो पकड़ो हाथ, ये क्या किया मैंने, फिर से पकड़ो हाथ, ये पकड़ने के लिए आ रहा है, मैंने उसी हाथ से उसके फेस पे अटैक किया, पाम में पोर्शन से उसके नोज पे अपन अटैक कर सकते हैं। ठीक है, ये तो मैंने नोज पे अटैक करना बताया। अब और डेंजरस अटैक क्या होते हैं, देखो ये अपन अटैक करना है, मैं इसके फिंगर्स, दोनों फिंगर्स से इसकी आईज को पीछे की तरफ पुश कर सकता हूँ। बहुत डेंजरस अटैक, अगर स्पीड में किया जाए तो उसको बहुत हानि पहुंचेगी। दूसरा, ये जो अपना एरिया होता है, आप ध्यान दीजिए, ये अपना जो हेड से लेके नेक तक का ये पोर्शन होता है, ये बहुत, इसमें सेंसिटिव पार्ट बहुत सारे हैं।
अपना कान हो गया, नोज हो गया, आईज हो गया, चिन हो गया, और ये अपना ये जो नेक, ये जो पोर्शन है यहाँ पे अगर अपन प्रेस करते हैं तो अपन को दर्द होता है, सांस भी रुक जाती है कभी कभी अगर तेज प्रेस किया जाए तो। ये अपना सेंसिटिव पार्ट है। दूसरा, कमर से नीचे का पोर्शन, ये जो पोर्शन है ये एक सेंसिटिव पार्ट है। तो अपन को बस यही ध्यान रखना है कि जब अपन किसी भी सिचुएशन में हैं तो अपने नियरेस्ट कौन सा सेंसिटिव पार्ट है सामने वाले का, तो अपन को उसी पार्ट पे अटैक करना है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस अपने दिमाग का यूज करना है, जो यूज करके अपन उस जगह पे अटैक कर सकते हैं। अभी मैं मार्शल आर्ट में आपको कुछ नहीं सिखाया, बस केवल स्टेप्स बताएं कि अपन कैसे अपने आप को बचा सकते हैं बहुत इजी वे में। अब मान लीजिए किसी ने ग्रिप कर लिया, हैंड ग्रिप कर लिया या पकड़ लिया किसी ने, मान लीजिए अपन ने बचने की कोशिश की फिर भी पकड़ लिया। अब अपन क्या कर सकते हैं, अब सामने वाला नेर क्या करता, क्या है, पकड़ के वो खड़ा नहीं रहेगा, वो क्या कोशिश करेगा, खींचने की। खींचो मुझे पीछे, ये वो क्या कोशिश कर रहा है, पीछे खींचने की कोशिश कर रहा है। और अपन नेचुरली क्या करते हैं, अपन अपनी साइड खींचते हैं। यही अपन गलती करते हैं। अपन को करना क्या है, वो अगर खींच रहा है तो खींचने दो, अपन उसके पास चले जाओ। थोड़ा आगे हो, हाँ खींचो मुझे, ये देखो अपन पास में गए। अब देखो मैं इसके नियरेस्ट पॉइंट मेरा क्या है, ये ग्रोइन, तो मैं इसके ग्रोइन पे ये अटैक कर सकता हूँ, नियरेस्ट है ये, मैं अटैक कर सकता हूँ। जब मैं अटैक करूंगा तो डेफिनेटली ये मेरा हाथ छोड़ देगा और अपने आप को बचाने में लग जाएगा। अभी मैं अटैक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर जब गुस्से में इंसान होता है, जब उसके ऊपर सिचुएशन आती है तो वो बहुत गुस्से में होता है, गुस्से में जब अटैक किया जाता है तो अपना पावर डबल हो जाता है। ठीक है, तो पकड़ा अपन ने, किसी ने खींचा अपन को, तो कुछ नहीं करना, नीचे जाना, खींचो मुझे, ये नीचे गए, देन अटैक, हिट कर देना है हाथ से या पंच बना के करो, जैसे ढीले हाथ का ये दिखाई दे रहा है, ये अपन को इस तरह से ये अटैक कर देना है। तो डेफिनेटली वो छोड़ देगा, बहुत दर्द होता है। ठीक है, कोई कितना भी मसल्स बना ले, बॉडी बना ले, लेकिन जो उसके वीक पॉइंट है उसको मजबूत नहीं कर सकता। उसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए, जो आजकल के लोग नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये एक मेन तरीका होगा। और आपको तरीका बताता हूँ सिंपल एक चीज, और थोड़ा आप देखिए, टेक्निक्स के ऊपर अपन जाता है। मैं टेक्निक्स नहीं बता रहा था, केवल ये बता रहा था दिमाग का यूज करना कि अपन कैसे अपने आप को इजी वे में छुड़ा सकते हैं। अब देखो टेक्निक की बात है, मान लीजिए किसी ने ग्रिप किया हो, टाइट पकड़ो। अब देखो मेन चीज क्या है, सबसे ज्यादा पावर होता है ये 4 फिंगर्स में। ये थंब अकेला है, अपनी ये बोन है, इसको इस एंगल में रखना है ताकि ये दोनों जॉइंट्स को ओपन करते हुए बाहर निकले। यहाँ से ओपन करते हुए बाहर निकलेगी, दिखाई दे रहा है, ये ओपन करते हुए बाहर निकलेगी अपनी बोन। तो इसको अपन क्या करना है, झटके से इसी पोर्शन से थंब की तरफ प्रेस करते हुए हैंड्स को ये खींचना है, तो इसका इजीली हैंड्स छूट जाएगा। फिर से पकड़ो, टाइट पकड़ो, एकदम टाइट, हाँ टाइट पकड़ो। ये कितना भी टाइट पकड़ ले इंसान, अगर अपन थंब की तरफ प्रेस करते हुए अपने बोन्स को अगर ऊपर की तरफ निकालेंगे तो हैंड्स इजीली छूट जाएगा। ठीक है, मान लीजिए सामने वाला बहुत कमजोर है, मान लीजिए कोई छोटी सी बच्ची भी है या कोई भी है, अगर बहुत टाइट पकड़ा हुआ है, सामने वाला बहुत टाइट है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं ये टेक्निक नहीं कर पा रहा हूँ, तो क्या कर सकते हैं, तो दूसरे हैंड का यूज करना है। इसको पहले पंच बनाओ, दूसरे हैंड से इसको पकड़ो और पूरी बॉडी की ताकत लगाते हुए इसको, जैसे मैंने बताया है खींचने के लिए, वैसे ही इसको अपनी साइड ये खींच देना है। कितना भी टाइट पकड़ ले इंसान, फिर भी अपन इसको छुड़ा सकते हैं। लेकिन इसके लिए अपन को क्या चाहिए, पूरी बॉडी की पावर चाहिए, पूरा बॉडी स्ट्रेंथ यूज करना पड़ेगा। टेक्निक्स देखो बहुत सारी हैं, इजी लगता है देखने में, बट जब तक अगर अपन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उस चीज को नहीं कर सकते। तो मैंने सबसे पहले वो सारी चीजें आपको बताई जिसमें प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग यूज करना है और अपन वो चीज कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए दोनों हाथों से पकड़ लिया, दोनों हाथों से पकड़ लिया, अब क्या करें। अब देखो अपने जो मैंने जो बताया उसको मैं अप्लाई नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि दोनों साइड से ग्रिप है, ऊपर भी दोनों साइड से ग्रिप है। तब क्या करें, देखो सेम मैंने जैसे बताया, हल्का सा पहले अपने देखो हैंड्स अंदर मूव कर सकता है, ये कितना भी टाइट पकड़ ले हैंड्स मूव कर सकता है। तो अपनी जो बोन है इसको ऊपर के डायरेक्शन में लेके जाना है, पंच बनाना है, दूसरे हैंड को यूज करना है, अंदर लेके गए, अपने पंच को पकड़ा और ये पूरे पावर के साथ ये खींच दिया। कितना भी इंसान टाइट पकड़ ले, इंसान को छोड़ना ही पड़ेगा, ये देखो स्पीड में खींचना पड़ेगा। ये बहुत से लोग बोलते हैं कि सेल्फ डिफेंस अपन सीख लेते हैं लेकिन अप्लाई नहीं कर पाते। सेल्फ डिफेंस कोई भी टेक्निक होती है, उसके लिए सबसे मेन चीज है अपना अंदर आत्मविश्वास बहुत होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ। कॉन्फिडेंस के साथ स्ट्रेंथ और स्पीड, ये 3 चीज होना बहुत जरूरी किसी भी टेक्निक को
करने के लिए, ठीक है। और सबसे मेन चीज है प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई भी चीज आप करोगे, करने जाओगे तो आप वो नहीं हो पाएगी। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अब मान लीजिए, अब थोड़ा अपन और फास्ट करते हो, जल्दी जल्दी टेक्निक्स पे जाएंगे। ये तो हो गई हैंड ग्रिप। और भी तरीके हैं, फिर से पकड़ो। ये तो हो गया, मैंने बता दिया। अब मान लीजिए सिंगल हैंड है, सिंगल हैंड, सिंगल। अब देखो, अब ये अपोजिट हैंड है, इसमें क्या कर सकते हैं, मैंने सबसे इजी बताया, कोई टेक्निक नहीं है। सबसे छोटी उंगली होती है ना, इस पे प्रेशर कम होता है। सबसे छोटी उंगली, इस पे प्रेशर कम होता है, उसकी उंगली को पकड़ो और ये खींच दो, अपने आप छोड़ देगा। फिर से पकड़ो, इसमें कोई टेक्निक नहीं है, बस दिमाग का यूज करना। छोटी उंगली को पकड़ो और ये खींच दिया। बस स्पीड में करना, जो भी करना है स्पीड में करना। स्लो करोगे तो सामने वाला और एक्टिव हो जाएगा और अपन को हानि पहुंचा सकता है, ठीक है। तो जो भी करना होती है, जो भी टेक्निक होती है, स्पीड में अप्लाई करनी होती है। चलिए फिर से, ये हो गया, ये मैंने आपको बता दिया। अब सेम हैंड अगर है, अब देखिए एक टेक्निक और, टेक्निक नहीं है, बहुत छोटी सी चीज है। ये आप अंगूठा देख रहे हैं, ये अंगूठा हो या कोई भी फिंगर्स हो, अगर इस अंगूठे के जो नेल्स है, नेल्स के जस्ट ऊपर का ये जो पोर्शन है, ये जो अंगूठे के जस्ट ऊपर का जो पोर्शन, अगर इसको अपन प्रेस किया जाए, ये अच्छे से अगर इसको प्रेस करेंगे तो इंसान अपने आप ही ग्रिप छोड़ देगा। नहीं, आप एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। अगर इसको प्रेस करेंगे इस पॉइंट को तो बहुत दर्द होता है, और जब इसको गुस्से में अगर प्रेस किया जाएगा ना तो ज्यादा दर्द होगा, तो इंसान अपने आप छोड़ देगा। पकड़ो, ये बस कुछ नहीं करना, इसको दबाना और ये अपने आप छोड़ देगा, वो कितना भी टाइट पकड़ाओ, ठीक है। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। अब और अपन थोड़ी बड़ी टेक्निक्स पे जाते हैं। मान लीजिए किसी ने आपको कमर को पकड़ लिया, पकड़ो कमर। अपन ने बचने की कोशिश की लेकिन नहीं बच पाए, फिर भी अब किसी ने पकड़ लिया। अब अपन क्या कर सकते हैं, अब देखो पहले सबसे इजी कि उसके वीक पॉइंट्स देखो कि सबसे नियरेस्ट क्या है, कहाँ अपन अटैक कर सकते हैं। ये देखो, इसने पकड़ा भी गलत है क्योंकि ऐसे पकड़ते ही नहीं है। कोई भी स्ट्रेंजर होता है, किसी लड़की को पकड़ने आता है तो कैसे पकड़ता है, पकड़ो अच्छे से पकड़ो, हाँ अच्छे से। ये देखो पूरा चिपक गया है, ये एकदम पकड़ लिया। अब अपन कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये जो रिब्स के ऊपर इसका हैंड ग्रिप है, तो इसमें दर्द होता है, इंसान इसी को दबाता है, ठीक है। तो अपन इसमें क्या क्या कर सकते हैं, देखो सबसे पहली चीज, अपना नी को उठाओ, इसके मेन पॉइंट जो ग्रोइन पे अपन अटैक कर सकते हैं फर्स्ट। बहुत इजी, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस ये उठाए अपने अटैक किया, ठीक है। मान लीजिए बाय चांस, सारी जो टेक्निक्स है, हर जो लेडीज है, जरूरी नहीं कि लोअर टी शर्ट में हो या कंफर्टेबल कपड़ों में, कोई कभी कभी साड़ी में भी हो सकती है लेडीज, साड़ी में हो सकती है, कोई प्रेग्नेंट लेडी भी हो सकती है। तो वो अपने आप को कैसे बचाए इस सिचुएशन से, क्योंकि हर इंसान किक नहीं चला सकता, हर इंसान मार्शल आर्ट यूज नहीं कर सकता। तो अपन को सबसे इजी वे में जाना है। फिर से पकड़ो, ये पकड़ लिया। अब देखो सबसे जो है, एक तो इसके कान, ये दिखाई दे रहा कान, इसके जो नीचे का जो पोर्शन होता है जहाँ पे बाली पहनी जाती है कानों में, उस पोर्शन पे जैसे मैंने बताया, इस नाखून से या फिर किसी भी उंगली से इसको दबाना है दोनों कानों पे, ठीक है। तो ये इजीली छोड़ देगा पीछे की तरफ। ये एक चीज ये हो गई। दूसरा, इसकी आईज, दोनों थंब का यूज करना, आईज के ऊपर रखते हो, पीछे की तरफ धकेना, ये ठीक है। तो इजीली इसका हैंड ग्रिप छूट जाएगा, क्योंकि जब दर्द होता है सेंसिटिव पार्ट को जब पुश किया जाएगा तो डेफिनेटली छोड़ देगा, क्योंकि दर्द बहुत भयंकर होता है। अभी तो मैं आराम से कर रहा हूँ, जब स्पीड में करेंगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा। फिर से पकड़ लो, एक आइज हो गया, दूसरा कान हो गया, तीसरी ये जो साइड की जो बालें होती हैं, ये जो बाल है साइड से, इसको भी अगर खींचेंगे ना तो ये बहुत दर्द होता है। ये साइड से जो बाल होते हैं ना, बहुत सेंसिटिव पार्ट होते हैं, ये भी खींचते हैं तो बहुत दर्द होता है। तो इनको भी अपन खींच सकते हैं और सामने तक अपने आप को बचा सकते हैं। ये इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई मार्शल आर्ट नहीं, बस अपन को ध्यान रखना है कि अपन क्या क्या कर सकते हैं, नियरेस्ट जो अपने वीक पॉइंट्स है उनको कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं, बस इस चीज का ध्यान रखना है। अब मान लीजिए किसी ने अपन को कमर से पकड़ा, उठा दिया, ये उठा दिया, अच्छे से पकड़ो, नीचे से कमर से, हाँ ये उठा दिया। अब इंसान क्या करे, थोड़ा सा छोड़ो, थोड़ा देर, हाँ फिर से उठाओ। मान लीजिए किसी ने आया दौड़ लगा के और आके ने कमर को पकड़ा नीचे से, हाँ ये उठा दिया। अब इंसान क्या करता है, घबरा जाता है। घबराना नहीं है, बस रिलैक्स रखो अपने आप को, क्योंकि इस सिचुएशन में अपन को कोई हानि तो पहुंच नहीं रही है। अपन को माइंड शांत रखते हो क्या करना है, जैसे मैंने बताया, आइज के ऊपर अंगूठे को रखो, पुश करो पीछे की तरफ, इंसान अपने आप छोड़ देगा। कितना भी टाइट हो, कितना भी ताकतवर इंसान हो, जब उसके वीक पॉइंट्स को अगर दबाया जाए तो इंसान डेफिनेटली ग्रिप छोड़ देगा, ठीक है। ये एक तरीका हो गया। अब मान लीजिए किसी ने गले को पकड़ लिया, दोनों हाथ से पकड़ लिया, अब क्या करें अपन,
अब इसमें क्या कर सकते हैं, देखो सामने टाइट पकड़ा हुआ है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, मेन ग्रोइन पे अपन अटैक कर सकते हैं, अगर नहीं अपने हैंड का भी यूज कर सकते हैं अपन, ठीक है। हैंड से भी अपन ये अटैक कर सकते हैं, दोनों हैंड का यूज कर सकते हैं। दूसरा अटैक बहुत सारे हैं, ये अपना नेक के ऊपर अपने फिंगर्स कर लो, दोनों हाथों के बीच में से लेके जाना है नेक पे, अपन ये अटैक कर सकते हैं, ठीक है। जब ये स्मॉल, ये जो अपने फिंगर जब इसके नेक पे जाएगी, जब अपन इसको जब पुश करेंगे तो डेफिनेटली वो ग्रिप छोड़ देगा, क्योंकि बहुत दर्द होता है, सांस भी रुक जाती है कभी कभी, ठीक है। फिर से पकड़ो, ठीक है। जो मैंने बताया ग्रोइन अटैक, नेक अटैक। दूसरा आइस पे, जैसे मैंने बताया थंब को रखो, पीछे की तरफ दबा दो अच्छे से, ठीक है। ये हो गया एक चीज। फिर से करो, और भी चीजें देखो, इंसान कितनी भी मसल्स बना ले, बट ये जो पोर्शन होता है, ये जो मसल्स पोर्शन होता है, बनने के बाद भी इसमें दर्द होता है अगर पड़ती है तो। अभी ये नकल होती है, ये जो नकल एरिया है, इस नकल एरिया से अपन को अच्छे ताकत से स्पीड में यहाँ पे अटैक करना है। जब अटैक करेंगे तो इंसान छोड़ देगा, क्योंकि दर्द होता है, बहुत दर्द होता है यहाँ पे। कितना भी कोई बॉडी बिल्डर जाए, यहाँ पे दर्द होता ही होता है मसल्स पे, ठीक है। अब मान लीजिए और तरीका आपको बताता हूँ, फिर से पकड़ो। अब थोड़ा टेक्निक पे जाते हैं। टेक्निक क्या है, अपने हेड को नीचे ले जाते हुए ये घूम जाना है, आ रहा है समझ में। फिर से आप देखिए, पकड़ो, ये पकड़ लिया। वो तो मैंने सबसे इजी चीजें बता दिया, थोड़ा टेक्निक का यूज करेंगे। बस कुछ नहीं करना, अपने नेक को रोटेट करना, ये कितना भी ताकत से पकड़ा हो इंसान छोड़ देगा, ठीक है। अब मान लीजिए, अब नेक्स्ट टेक्निक पे अपन जाते हैं। किसी ने अपन को पीछे से पकड़ लिया, आ जाओ। अपन ने अभी सामने से सारी चीजें फॉलो करी है, पीछे से देखते हैं। एक मिनट, अगर अपन चल रहे हैं, ये चलते हुए जा रहे हैं, आइए। अब किसी ने आगे पीछे से पकड़ लिया, क्योंकि अपन पीछे से एक्टिव नहीं हो पाता, अपन को नहीं पता कि पीछे से क्या होने वाला है। सामने से अगर कोई चीज हो रही तो अपन बच सकते हैं, बट पीछे से किसी ने ग्रिप कर लिया सडनली तो अपन घबरा जाते हैं एकदम से। लेकिन अपन को मेन चीज यही है सेल्फ डिफेंस में, घबराना नहीं है, माइंड को शांत रखिए और सोचिए कि अपन को करना क्या है। टाइट पकड़ो अच्छे से, ये पकड़ा हुआ है। अब देखो अपन क्या कर सकते हैं, अपन नहीं जा सकते आगे, बचने की कोशिश करते हैं, अपन छुड़ाने की कोशिश करते हैं, नहीं छूट रहा है, क्या करेंगे। सबसे इजी तरीका, थोड़ा पास, सबसे इजी तरीका, किसी भी एक फिंगर को पकड़ने की कोशिश करो, सबसे स्मॉल फिंगर जो मैंने बताया ना, सबसे स्मॉल फिंगर पकड़ो, जोर से इसको मोड़ दो ऐसे, तो इंसान अपने आप छोड़ देगा। सबसे इजी तरीका, इसमें कोई मार्शल आर्ट नहीं। फिर से पकड़ो, पकड़ लिया, स्मॉल फिंगर पकड़ा, छोड़ दिया, ठीक है। अब और क्या कर सकते हैं इसमें, आप हेड पे अटैक कर सकते हो, ये अपने एल्बो से अटैक कर सकते हो। इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हेड, ये अपने एल्बो से अटैक किया। और क्या कर सकते, देखो थोड़ा इधर आओ, टाइट पकड़ो, ये किया। अब देखो क्या कर सकते हैं, अपने थोड़ा टेक्निक पे अपन जाते हैं। तो मैंने राइट वाला पैर इसके पैरों के पीछे लेके गया, ये दिख रहा है, पैरों के पीछे लेके गया। अब दोनों हैंड से मैंने इसके पैर को पकड़ा और ये उठा दिया। अब मैं जो चाहे कर सकता हूँ, इसके साथ में लेके गिर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर गिर गया तो इसका काम लग जाएगा, ठीक है। तो ये है टेक्निक, इसके लिए चाहिए पड़ेगी प्रैक्टिस। तो अभी अब आप कर सकते हो, लेकिन सबसे इजी जो मैंने आपको बताया आप उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। और अपन क्या कर सकते हैं, देखिए मान लीजिए किसी ने दोनों हाथ भी पकड़ लिए अपने, ग्रिप करो कमर को हाथों के साथ, ये अब हाथ भी पकड़ लिया। अब क्या करें अपन, अब अपन कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उंगली भी पकड़ तो सकते हैं अपन उंगली, लेकिन उतना पावर नहीं आएगा। लेकिन फिर भी अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अपन ये मोड़ सकते हैं, ग्रिप छूटेगा। अगर नहीं छूट रहा है बाय चांस, तो अपन क्या कर सकते हैं, देखो इसका है, पकड़ो अच्छे से, इसका हेड मेरे हेड के पास है, तो फर्स्ट अपन क्या कर सकते हैं, ये अपन जोर से हिट कर सकते हैं पीछे की तरफ। इसके नोज पे अटैक होगा तो डेफिनेटली वो छोड़ देगा। इसके बाद और अपन क्या कर सकते हैं, देखिए ये पीछे ग्रोइन पे अपन अटैक कर सकते हैं। अगर स्पीड में अटैक किया जाए तो भी इंसान छोड़ देगा, उसका फिर दर्द होगा तो अपने आप ही छोड़ देगा, वो बिजी हो जाएगा अपने आप में। और अपन क्या कर सकते हैं, देखो जो मैंने अभी एक टेक्निक बताई थी, टेक्निक वही, पैरों को पीछे लेके गए, पैर पकड़े और यहाँ से उठाया और गिर गए इसके साथ ही इसके ऊपर, तो इसकी जो पसलियां वो सब तक टूट जाएगी। जब अपन गिरते हैं तो अपना एल्बो इसके स्टमक पे जाता है, पसलियों पे जाता है, तो बहुत डेंजरस अटैक हो सकते हैं, ठीक है। अब अपन और क्या कर सकते हैं, मान लीजिए किसी ने अपने दोनों हाथ पकड़ लिए पीछे से, दोनों हाथ पकड़े हुए हैं। अब इस सिचुएशन ये तो बहुत इजी है वैसे, लेकिन फिर आप देखिए ये बहुत पकड़े हुए हैं, कुछ नहीं करना है, बस स्टेप, थोड़ा टेक्निक को यूज करना है, पैर पीछे लेके जाना है, देखिए यहाँ से, और ये अपन ने ये हाथ अपना यहाँ है और नीचे पैर का यूज किया और इसको ये गिरा दिया। वही चीज है, ये टेक्निक से, ठीक है।
टेक्निक का आप यूज कर सकते हैं। फिर से पकड़ो, फिर से आप देखिए एक बार स्लो मोशन में, थोड़ा पास में आओ, अच्छे से पकड़ो। हाँ ये पकड़ा हुआ है, कुछ नहीं करना है, अपना पैर लेके जाना है इस पैर के पीछे, दोनों पैर के पीछे लेके गए। अब देखो यहाँ से मैं हल्का सा इसको पुश करूंगा और इसका बॉडी का बैलेंस अपने आप बिगड़ेगा और ये गिर जाएगा। ठीक है, ये एक तरीका हो गया। अब और अपन क्या क्या कर सकते हैं, देखिए मान लीजिए किसी ने अपन को नेक से लॉक किया हुआ है, जिसको बहुत लोग बोलते हैं इसको छुड़ा नहीं सकते। आ जाओ पकड़ो, नेक को लॉक करो, नेक। हाँ एक मिनट ये हेडफोन, फिर से लॉक करो। ऐसे नहीं, कैसे पकड़ते हैं? हाँ ये पकड़ लिया। अब अपन क्या करें इस सिचुएशन, सबसे पहले अपन को देखना है अपना जो थ्रोट है वो प्रेस हो रहा है क्या। अगर लग रहा है आपको थ्रोट प्रेस हो रहा है, सांस लेते नहीं बन रही, तो सबसे पहले क्या करना है, इसके हैंड्स पकड़ना है, थोड़ा नीचे की तरफ खींचना है और अपने थ्रोट को सेफ करना है। उसके लिए क्या कर सकते हैं, अपने चिन को नीचे कर सकते हैं या अपने चिन को ऐसा साइड कर सकते हैं। तो जो अपना साइड का ये जो पोर्शन है ये अपना मजबूत होता है, तो पूरा प्रेशर इसके ये अपने साइड पे चला जाएगा, तो अपना थ्रोट सेफ हो जाएगा। तो अपन बहुत सारी चीजें फिर अपन कर सकते हैं। तो अब देखो अपन टेक्निक्स पे जाते हैं। क्या कर सकते हैं, पहले पकड़ो, या तो वही सेम उंगली का यूज करूं, पकड़ के खींच दो, या फिर ग्रोइन पे यूज कर सकते हैं। इसके लिए कुछ नहीं करना है, बस अटैक करना है दिमाग का यूज करते हुए। ठीक है, अब टेक्निक्स पे जाए तो अपन ने इसको पकड़ा, ठीक है, ये इसका हाथ पकड़ा, एक हाथ पकड़ा, थोड़ा सा नीचे गए, ये अपन ने पकड़ने की कोशिश किया, अपने हिप से इसके पैर को पुश किया और ये पटक दिया। ठीक है, फिर से अपन एक बार रिपीट करेंगे। चलिए वापस आइए, फिर से आपके पास देखिए आप, ये अपने पकड़ा, ग्रिप किया हुआ है, अपन ने इसके एल्बो को पकड़ा, ये दूसरा हैंड से भी इसको ग्रिप किया, ये पीछे से इसके कपड़ों को पकड़ते हुए हिप से इसके पैर को पुश करना है ये। ठीक है, ये टेक्निक्स है, ये प्रैक्टिस करते करते अपन सीख सकते हैं इसको। ठीक है, अब और अपन क्या कर सकते हैं, देखिए मान लीजिए किसी ने आपके नेक को इस तरह से पकड़ा हुआ है, इस तरह से पकड़ लिया नीचे, ये अब क्या करें अपन, पकड़ो, आ जाओ, ये दबा दिया ये। अब अपन क्या कर सकते हैं, देखो करने के लिए बहुत कुछ है, या तो अपन ग्रोइन पे अटैक कर सकते हैं यहाँ से, ये अपन ग्रोइन पे यहाँ से अटैक कर सकते हैं। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, अपना पैर इसके पैर के जस्ट पीछे, तो अपन यहाँ से इसको गिरा भी सकते हैं। इसमें ज्यादा पावर लगाने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा टेक्निक को फॉलो करना है। हाँ फिर से आइए, ये अपन ने पकड़ा हुआ है। अब देखो दूसरा हाथ अपना पीछे की साइड है, थोड़ा घूमो, ये देखो दूसरा हाथ अपना पीछे, अपनी गर्दन इसने ग्रिप किया हुआ है। तो अपन क्या कर सकते हैं, दूसरे हैंड से इसके चिन को पकड़ना है, ये दिख रहा है, ये बहुत इजी है। ये अपने इसको चिन को पकड़ा, अपना दूसरा पैर इसके पैर के पीछे है, अब इसके चिन को पीछे की तरफ पुश करना है, ये तो इंसान इजीली छोड़ देगा। ठीक है, अब और टेक्निक्स पे अपन जाते हैं। एक सिचुएशन आती है जो अपन अक्सर देखा जाता है, उस सिचुएशन के लिए अपन बस एक टेक्निक और लास्ट अपन उसको देखते हैं। हाँ देखिए, अब मान लीजिए आप किसी भी टेक्निक को अप्लाई किया, बाय चांस गिर जाते हैं, आप गिर गए, सामने वाले ने आपके ऊपर आके ग्रिप कर लिया और पकड़ लिया। आ जाओ, सबसे पहले मान लीजिए किसी ने आपके गले को पकड़ लिया, ठीक है, इस तरह से पकड़ा हुआ है, तो अपन को घबराना नहीं है। मैन सबसे पहले दिमाग को शांत रखें। अब फिर सोचे कि अपन क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अपने हैंड्स को अंदर लेके जा सकते हैं, इसके नोज पे अटैक कर सकते हैं, यहाँ से इस तरह से, ये नोज पे अटैक किया, इसके आईज को प्रेस कर सकते हैं पीछे की तरफ। ठीक है, ये भी हो सकता है। और साथ में अपन और क्या कर सकते हैं, जो दोनों हाथ हैं अपने इस तरह से अंदर लेके जाना है, दोनों हाथों के जोड़ते हुए इस तरह से, और इसको हाथों को अच्छे से ये ओपन कर देना है। ये देखो ओपन किया, अब पीछे अपने पैर से इसके कमर को पीछे की तरफ पुश करना है, ये फिर से एक बार रिपीट करेंगे। आ जाओ, ये थोड़ी टेक्निक से ये प्रैक्टिस करते करते आता है, बहुत इजी। एक बार आप ध्यान से आप देखिए, फिर से ग्रिप किया किसी ने, हाँ ये अपन ने हाथ अंदर लेके गए, इसको हैंड्स को ओपन किया, देन पुश। ठीक है, वापस आओ, वापस आओ, आपको खुद उठ के नहीं जाना है। अब मैं आगे बताता हूँ, पुश करने के बाद अपन और क्या कर सकते हैं। आ जाओ, ये किया, ये अपन ने ओपन किया, ये पुश किया, फिर भी नहीं गया, तो क्या करेंगे, इसको पलट देना इस तरह से, ये पलट के इसको ऊपर आ जाना है, फिर अपन जो चाहे फिर अटैक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए
अपन ने अभी बहुत सारी टेक्निक्स अपन ने सीखी, बहुत सारे अपन ने इजी वे में उसको करने की कोशिश किया, जिसमें टेक्निक्स कम है, बस माइंड का यूज करना है, उसकी जो नियरेस्ट वीक पॉइंट है उसके ऊपर अटैक करना है। जैसे ग्रोइन हो गया, थ्रोट हो गया, नेक पोर्शन, नोज, चिन, ईयर, आईज, ये जो वीक पॉइंट्स है इसके ऊपर अपन अटैक करके बच सकते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस थोड़ा सा अवेयर होते हुए अपन चीजों का यूज करके अपने आप को बचा सकते हैं। और 3 चीज जैसे मैंने आपको बताया है, प्रोटेक्ट, हिट एंड रन, ये 3 चीजों का यूज करेंगे सेल्फ डिफेंस के लिए। सबसे पहले अपने आप को बचाओ, हिट करो, जो भी उसके वीक पॉइंट्स है वहां पे अपन हिट कर सकते हो और फिर भाग जाओ वहां से, ठीक है। वेट मत करो, वहां से भाग जाओ। ये 3 चीजों का यूज करके अपने आप को अपन बचा सकते हैं, ठीक है। और मेन चीज जो मैंने टेक्निक्स बताई या जो भी अपन अप्लाई करते हैं फुर्ती से अपन को करना होता है, तो इन सब चीजों के लिए डेली आप थोड़ा सा योगा अभ्यास करें, एक्सरसाइज करें, ठीक है। इसको करने से क्या होगा, आपका माइंड शार्प होगा, आपके फिजिकल जो स्ट्रेंथ है वो बनी रहेगी, आपकी स्फूर्ति आ जाएगी शरीर में, तो आप बहुत सारी चीजें इससे कर सकते हैं, ठीक है। तो जो मैंने आज जितनी भी चीज आप लोगों को बताई, आई होप समझ में आया होगा। मैंने सरल वे में आपको समझाने की कोशिश किया है, कुछ टेक्निक्स भी अप्लाई किया है। टेक्निक्स एक बार देख के समझ में नहीं आएगा, अपन को प्रैक्टिस से आएगा, तो धीरे धीरे अपन अगर प्रैक्टिस करेंगे तो वो चीज अपन को आने लगेगी। तो आई होप आप लोगों को सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा। अब आप लोग अगर कोई भी क्वेश्चंस हो, आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, किसी भी टेक्निक को लेके कुछ भी आप पूछना चाहे तो आप पूछ सकते हैं। क्योंकि मार्शल आर्ट में टेक्निक्स बहुत सारी हैं बताने के लिए, तो बहुत छोटी है, बहुत कम चीजें मैंने आप लोगों के सामने डिस्क्राइब किया, क्योंकि टाइम का अपने पास बाउंडेशन है, तो अपन ज्यादा चीज नहीं कर सकते। तो बहुत कम टाइम में अपन बहुत कुछ सीखने की कोशिश किया है। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो आप अगर कोई क्वेश्चन हो इस चीज को लेकर तो आप पूछ सकते हैं। Thank you, Mr. Ben, for teaching us some basic but important safety techniques we need to be aware of. Now the floor is open for the questions. So you can unmute yourself and ask the questions, or you can write in the chat box. सेल्फ डिफेंस में सबसे ज्यादा मेन चीज यही होती है कि अपने आप को अवेयर रखना। बस अगर आप अवेयर हो तो आप अपने आप को डेफिनेटली प्रोटेक्ट कर सकते हो। घबराना नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना है। Yes, Swagata, this video will be uploaded on WWC web page, so you can access it later as well. So if anyone has any questions, please go ahead and you can ask Ajay ji. मैंने बहुत इजी तरीके से आपसे समझाने की कोशिश, आई होप सभी को समझ में आ ही गया होगा। इसलिए क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत इसको रिसर्च करने के बाद सोचा कि अपन अगर कोई टेक्निक्स अपन सिखाते हैं तो टेक्निक्स देखने में बहुत अच्छी लगती है, देखने में बहुत मजा आता है, लेकिन अगर उसको करने जाते हैं तो अपन भूल जाते हैं। या अगर अपन एक बार सीख भी लेते हैं तो अगर उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो अपन उसको अप्लाई नहीं कर सकते। तो मैंने सोचा कि अपन कुछ नया, कुछ इजी वे में करें, जिसको कोई भी अप्लाई कर सकता है, कोई भी कभी भी यूज कर सकता है। इसके लिए कोई प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, बस आपको अवेयर होना है, आपको पता होना चाहिए कि आपको अटैक कहाँ करना है, बस। इसके अलावा और कोई प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। इसके लिए सभी लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, चाहे कोई साड़ी भी अगर कोई पहन के वुमेन कहीं अगर ऑफिस जा रहे हैं, अगर कोई उसके साथ सिचुएशन आ जाती है, तो आप ये सारी बहुत इजी टेक्निक्स है, कोई भी अप्लाई कर सकता है। इसके लिए किसी भी हार्ड प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। तो और भी कोशिश करेंगे कि आगे अपन और इसको नई नई टेक्निक्स, और किसी के अंदर क्वेश्चंस हो या कोई नई टेक्निक किसी को आए कि मुझे समझ में नहीं आ रहा इससे मुझे कैसे बचना है, तो आप किसी भी टाइम आप ताइक्वांडो रूम में आ सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। आप वहाँ पे आप मुझे पूछ सकते हैं, तो आपको डेफिनेटली मैं उसके बारे में बताऊंगा कि अपन क्या क्या और कर सकते हैं। तो ये सेशन बहुत शॉर्ट अपन ने करने की कोशिश किया है। अगर किसी का क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं। अजय जी, यस मैम।
Yes, ma'am. So Ajay ji, we have a question for you. Okay. थैंक यू अजय जी, आपने बहुत अच्छी टेक्निक बताई। एक क्वेश्चन है मेरा, थैंक यू मैम। जी मैम। इस हिसाब से बताइए कि अगर कोई हम पे अटैक करे तो, बट इफ वी सी अगर हम देखते हैं कि किसी और पर कोई अटैक हो रहा है और कोई इससे स्ट्रगल कर रहा है, तो हम उसे कैसे उसकी हेल्प कर सकते हैं, वो भी एक दो चीजें कुछ बता दीजिए। देखिए, सबसे पहले मेन चीज है कि सेल्फ डिफेंस अगर अपने आप को अपन बचा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये जो मैंने बेसिक चीजें बताई है वो अपन अपने आप पे यूज करके तो अपन कर सकते हैं। अब मान लीजिए कोई डिफिकल्ट सिचुएशन में है, अपन उसको देख रहे हैं कि अपन चाह रहे हैं कि आप उसकी हेल्प कर सके, तो इसके लिए आपको थोड़ा तो मार्शल आर्ट की टेक्निक का यूज करना पड़ेगा। जैसे अगर आप मान लीजिए आपको मार्शल आर्ट नहीं आता, अगर कोई सिचुएशन में है, अगर आप उसको बचाने के लिए जा रहे हैं तो वो चीज आपके ऊपर भी हावी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि अगर वो चीज आपके ऊपर भी हावी होगी डेफिनेटली, क्योंकि आप उसको बचाने जाओगे तो वो उसको छोड़ के आपके ऊपर हावी हो सकता है। तो आपको तो पता है आपको कैसे बचना है, आपको क्या चीज करनी है, तो आप तो कर लोगे। लेकिन ये एक तरीका है कि आप थोड़ी प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करने के साथ आपको थोड़ा सा पंच किक, थोड़ा सा सेल्फ डिफेंस की टेक्निक्स सीखना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप किसी को बचाने जा रहे हैं, मान लीजिए आप 2 या 3 लोग हैं, 4 लोग हैं इकट्ठे, आप किसी को परेशान कर रहे हैं, और अगर अपन उसको बचाने के लिए जाएं तो देखो मार्शल आर्ट और सेल्फ डिफेंस दोनों में एक ये चीज होती है कि अपने आप को बचाना जरूरी है, मेन चीज। अगर मान लिया आप दूसरों को बचाने जा रहे हैं और वो ज्यादा लोग हैं, आप उनसे फाइट नहीं कर सकते। मैंने जो टेक्निक्स बताई है वो केवल एक सिंगल पर्सन के लिए टेक्निक है। अगर ज्यादा लोग हैं तो आप क्या करोगे, ज्यादा लोग हैं तो बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो। जैसे अगर उसके पास गए तो उसको आप पहले तो रोकिए, खींचिए, पकड़िए। अगर मान लीजिए इधर आइए, किसी को परेशान कर रहा है और वो इस तरह से मतलब उसके ऊपर नीचे बैठो, किसी का गला दबा रहा है नीचे बैठ के, अपन उसको बचाने के लिए जा रहे हैं, तो अपन वहां पर जाके उसको बोलेंगे नहीं, अपन को सडनली रिएक्शन लेना है। तो अपन क्या क्या कर सकते हैं, अगर अपने पास कुछ नहीं है उस समय हाथ में, उसका कॉलर पकड़ना है और पीछे की तरफ खींच देना है। तो क्या होगा, सामने वाला अनकंफर्टेबल हो जाएगा, पीछे चला जाएगा, और जैसे वो पीछे गया, वो नीचे लेटा हुआ है, अपन अपने पैर से उसके स्टमक पे, उसके फेस पे, उसके ग्रोइन पे अटैक कर सकते हैं। अगर सिंगल पर्सन है तो अटैक कर सकते हैं, फिर दोनों साथ में रन करके आप अपने सेफ पोजीशन पे, सेफ एरिया में आप जा सकते हैं। ये एक तरीका हो गया। मान लीजिए 3-4 लोग हैं जो किसी को पकड़े हुए हैं, तो आप पहले तो आप उसके पास जाओगे। अगर आप एक को मारोगे तो बाकी लोग भी रिएक्शन में आएंगे। तो आपको करना क्या है, आप उस समय ध्यान दीजिए कि आपके पास क्या क्या चीजें हैं अटैक करने के लिए, आपके पास वेपन्स कौन कौन से हैं। जैसे मान लीजिए वेपन्स भी नहीं है तो आसपास मिट्टी होती है, पत्थर होते हैं, तो उनका अपन कैसे यूज कर सकते हैं। मान लीजिए सामने 3-4 लोग खड़े हुए, अपन किसी को बचाने गए, उसको अपन ने अपनी साइड तो ले लिया, लेकिन सामने वाला अपन के साथ बहस कर रहा है, बहुत ज्यादा गर्मी हो गई, मतलब बहसबाजी हो गई, या अपन इस सिचुएशन में आ गए कि कोई अपन को हिट भी कर सकता है। तो अपन उस समय क्या करेंगे, आसपास देखेंगे, पत्थर मिट्टी जो भी मिले उसको तुरंत उठाइए, सामने वाले का फेस पे डालिए। तो उस समय आपके पास केवल 5 सेकेंड या 10 सेकेंड हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा। उस समय आप वहां से रन कर जाइए, क्योंकि अपने आप को बचाना इंपॉर्टेंट है, भागना अलग चीज है। भाग के भी अगर अपने आप को बचा लिया तो अपने आप को सेफ कर लिया, ये सेल्फ डिफेंस है। कुछ लोग इसमें बोलते हैं कि भागना नहीं चाहिए, कायरता होती है, लेकिन सही समय पर सही डिसीजन लेना सेल्फ डिफेंस है। इस चीज का अपन को ध्यान रखना है। और मान लीजिए आपके पास मिट्टी पत्थर भी है, ये तो अपन हो गया। पेन का यूज करना, मैं एक चीज बताना आपको भूल गया, मैंने लेके रखा हुआ था पेन। सबसे मेन, ये जो वेपन की तरह इसको यूज कर सकते हैं, चाहे एक पर्सन हो या किसी को बचाने के लिए हो, या अपन खुद भी किसी कंडीशन में हो। तो पेन का अपन अटैक कैसे कर सकते हैं, पेन हो या की चेन हो, दोनों का अपन यूज कर सकते हैं। बस पकड़ने का तरीका चेंज होना चाहिए। चाहे तो अपन सीधा ऐसे नाइफ की तरह भी पकड़ सकते हैं, और चाहे तो इसको इस तरह से पंच की तरह पकड़ सकते हैं, इस तरह से ये थंब को ऊपर रखते हुए ये पंच की तरह पकड़ सकते हैं। चाहे कितने भी लोग हो, अगर आपको पकड़ने के लिए आ रहा है, बस थोड़ा सा अवेयर होना है, थोड़ी सी आप में स्पीड होनी चाहिए, तो आप इसका डेफिनेटली आप यूज कर सकते हैं सही समय पे। इधर आइए, आप इसका देखो कहाँ कहाँ यूज करते हैं, कहीं भी आप वैसे इसका यूज कर सकते हैं, पॉइंटेड है, कहीं भी किसी भी जगह पे आप इसको पुश करोगे, चाहे वीक पॉइंट्स पे आप पुश करो, ग्रोइन पे कर सकते हो, थाइस पे कर सकते हो, कहीं भी आप इसको पुश करोगे सामने वाले को बहुत जोर से लगेगा।
ठीक है, चाहे कितने भी लोग आपको पकड़ने के लिए आएंगे डेफिनेटली। मान लीजिए कोई आपको पकड़ने आ रहा है, ये पकड़ने के लिए आया, तो आप तुरंत ये अपने हैंड पे इससे ग्रिप किया, तो सामने वाला मान लीजिए 10 सेकंड 20 सेकंड के लिए तो अपने आप में वो करता ही रह जाएगा कि नहीं मुझे बहुत जोर से लगे, वो तो आएगा नहीं दोबारा, क्योंकि आपके पास हथियार है। अगर दोबारा आए तो आप हो सकता है उसके फेस पे मार सकते हैं, कहीं भी आप मार सकते हैं, तो वो इसके डर के कारण वो आएगा नहीं। फिर दूसरा कोई आ गया, मान लीजिए पीछे से आकर पकड़ लिया किसी ने, पीछे से कमर पकड़ो, मान लीजिए पीछे से आकर पकड़ लिया, अब पेन है अपने पास, कुछ भी नहीं करना है, बस ये पुश करना, कहीं भी आप इसको मार सकते हैं। ठीक है, अगर आप मारोगे तो डेफिनेटली इंसान छोड़ देगा। ठीक है, ये पेन का आप यूज कहीं भी कर सकते हैं। मान लीजिए बस में आप सफर कर रहे हैं, मैं एक चीज बताना आपको भूल गया, अभी याद आ गया। बस में आप सफर कर रहे हैं, मेन होता है धक्का जो लगता है, छेड़खानी होती है, बस ट्रेन में सबसे ज्यादा होती है। तो क्या करना है, खड़े हैं, बस पेन लिया, पेन पॉकेट में भी हो सकता है, शर्ट में, कहीं भी हो सकता है, पेन है अपने पास तो बस लिया और हल्का सा पुश किया, पीछे की तरफ पुश किया, ये इस तरह से अपन इसको अटैक कर सकते हैं, तो सामने वाला अपने पास आएगा ही नहीं। ठीक है, और हाँ अपन अपन पॉइंट पे आते हैं। आपने जैसे क्वेश्चन किया बचाने के लिए, तो मैंने आपको बताया बहुत सारी चीजें अपन कर सकते हैं। अपने पास पेन तो होता ही है, अपन अगर ऑफिस जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कहीं भी अपन जा रहे हैं, पेन तो लगभग सभी के पास में होता है। कोई भी परफ्यूम स्प्रे हो गया, ठीक है, की चेन हो गया, इनको अपन हथियार की तरह यूज कर सकते हैं। कोई परेशानी में अपन उसको बचाने जा रहे हैं तो आप उसके पास जाइए, उसका कॉलर पकड़िए, कॉलर पकड़ खींचिए, अगर आपके पास पेन है तो उसको हथियार की तरह यूज कर सकते हैं। एक को मारेंगे तो दूसरा आएगा, दूसरे को भी आप कहीं भी आप पेन से अटैक करोगे तो सामने वाला दोबारा नहीं आएगा आपके पास, आप कहीं भी मार सकते हो, क्योंकि जब इंसान गुस्से में होता है तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव होता है, तो कहीं भी आप वो अटैक कर सकता है, तो सामने वाला अपने आप को बचाने के लिए आपके पास नहीं आएगा। ठीक है, और जो जिसको आप बचाने जा रहे थे उसको आप सेफ लेके रन कर सकते हो अपने आप को बचाते हुए। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं जिनको अपन को ध्यान रखना है, लेकिन अपन को अवेयर भी होना है कि अपन अपने आप को कैसे बचा, अगर किसी को बचाने जा रहे हैं, अपनी अगर मुसीबत में पड़ गए तो क्या करेंगे, तो अपने आप को बचाना जरूरी है, तो पहले अपने आप को सेफ करो, सेफ करते हो दूसरे पे अटैक करो। एनी क्वेश्चंस अदर? आई होप समझ में आया हो कि मतलब कैसे अपन को सिचुएशन से लड़ना है। बाकी बहुत सारी चीजें जो प्रैक्टिस से करते करते आएगी, चाहे 4 लोग हो, 5 हो, कितने भी हो, अगर आप कॉन्फिडेंट हो लड़ने के लिए, आपको पता है कि आप अपने आप को कैसे बचा सकते हो, तो आप जाके सामने वाले से लड़ सकते हो, किसी को भी बचा के आप वहां से निकल सकते हो। बस मेन चीज ये कि आपको थोड़ा अवेयर होना चाहिए और अग्रेसिव रह के आपको फाइट करनी है। एकदम ढीले होकर अगर आप फाइट करोगे तो आप किसी को नहीं बचा पाओगे, उल्टा अपन भी मुसीबत में पड़ जाएगी। अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि आप बचा सकते हो, आपको पता है आप कैसे कैसे टेक्निक्स का यूज कर सकते हो, किसको वेपन्स की तरह यूज कर सकते हो, तो आप जाके डेफिनेटली उसको आप बचा सकते हो, प्रोटेक्ट कर सकते हो और वहां से निकल सकते हो। जी मैम, एनी क्वेश्चंस मैम अदर? आई होप समझ में आया हो मैम आपको। Thank you very much, Ajay ji. So, changing mindsets and spaces is necessary if a more rounded goal of a positive as well as negative liberty is to be aimed for the women. As per a study, a woman who fights back gains an 86% chance of avoiding any physical harassment. Research suggests that a woman who complete a self-defense course are at least 50 to 60% less likely to be attacked with a malicious intent. Self-defense classes tend to decrease a woman's fear and anxiety about being attacked while increasing her confidence, sense of self-efficacy, and self-esteem. They also tend to make a woman stronger and more confident in their own bodies, and as a result, more comfortable in interaction with people. On the behalf of the Women Welfare Committee, I sincerely thank Mr. Ajay Meher and his assistant for a wonderful session and teaching us the safety techniques to defend ourselves in an unpleasant situation. I also thank all the participants for attending this session. I also thank all WWC committee members, Dr. Madhumita Mukherjee, convener WWC, Dr. Krishna Jain, Dr. Shireen Khan Bajpayee, and Ms. Babli Chaturvedi for their constant support and making this event successful. Thank you.